So what is resolving power? The ability of an optical instrument to just resolve the images of two nearby point source or spectral lines is called as its resolving power. So for example, a telescope है, and if you are observing cosmos or universe or sky in the night, then you will observe so many stars. Okay, there are millions of stars, and some you may find very close, but actually they are not very close. They are light years away from each other. Yes. All of you mute your mic. So when you observe, let's say such as two stars here, by naked eyes, you will observe these two stars very close, and as you will observe them as if they are single one. But if you use the telescope, then you will observe that it is not a single star, but there are two stars. They are very close to each other. So it means that a telescope could resolve these two stars images separately. Means this telescope is having some sufficient resolving power. So resolving power of telescope is a different, and the resolving power of a grating is a different concept. Understand this. Now to understand this resolving power, you have to understand Rayleigh's criteria of resolution. Rayleigh's criteria of resolution. There are three criteria or three conditions or three situations like well resolved, just resolved, and not resolved images. What is this? Let us understand. Now, if you are having a linear slit like this, the diffraction pattern will be like this, as shown in the green color. But if you are having a circular aperture, then you are having a diffraction pattern as shown in the red color. So your telescope is having a objective lens. Your telescope is having an objective lens, and that objective lens is circular, and that is nothing but the opening. Okay, and that is where the diffraction occurs. And if you are observing a single star, then you are not just getting the image of star here, but you are getting the diffraction pattern of star because your telescope is having circular opening. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. So when you are observing image of a star from telescope, so you are not just observing, or you are not just getting the image, you are not getting the pure image of the star, but you are getting the diffraction pattern of the star because your telescope is having circular opening, circular aperture like this. And now if there are two stars, then you will get two such diffraction patterns. And already we have seen that ये जो central maximum होता है उसको हम Airy's disk बोलते हैं. तो ये जो Airy's disk होता है, this is a very important criteria to decide whether the two images of the star are well resolved or not. कैसे देखते हैं? So see, in this diagram you will see three situations. First, second, and third. Now tell me the difference between these three images. नीचे मत देखो, सिर्फ ऊपर का देख के मुझे बताओ कि तीनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको. ये तीनों यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये स्टार के इमेजेस है, स्टार के डिफ्रैक्शन पैटर्न है. जब स्टार का इमेज फॉर्म होता है, मे बी इन योर रेटिना, आपके रेटिना के ऊपर ये फॉर्म हो सकता है व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग थ्रू द टेलीस्कोप. जब आपके रेटिना के ऊपर ये इमेज बनेगा तो आपको वहां पे सिंगल प्योर स्टार नहीं दिखाई देगा, बल्कि वहां पे आपको स्टार का डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है. तो दो स्टार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे नजदीक, एक दूसरे के नजदीक आपको दिखाई देंगे. तो मुझे ये तीन इमेजेस जो है उसमें डिफरेंस बताओ.
अरे बोलो ना, जल्दी बोलो. In first image, the stars are totally different, or we can say disjoint. In the second one, it is merging, and in third, it is totally merged. Correct. Very good. Now, see, this is what is the three situations that we have to discuss here. Now see, if you plot the graph of intensity of this diffraction pattern, then that particular graph will look like this. Okay. So one I have shown with the red color and another with the green color for understanding the difference. So you will clearly find the difference between these two maximas. In the second case, the difference is not much, it is very small. And in third, you will find that both the maximas are merged and a higher intensity maxima, single maxima, is produced here. Now in first, these two images can be easily resolved, so two distinct stars or objects can be seen. In the second case, these two images can just be resolved following from the Rayleigh's criteria. And third, the angular separation between these two images is too small and they cannot be resolved and separately from each other. ओके तो इसका कंडीशन क्या है, साइंटिफिक कंडीशन है उसका. ओके व्हाट इज दैट, लेट अस सी हियर. ध्यान से देखना पड़ेगा आपको. पहला हम ये समझ लेते हैं मिडल वाला, व्हाट इज जस्ट रिजॉल्व. ओके सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेल रिजॉल्व. This is just a result. Remember all these names. And this is called as a unresolved. This is called as a unresolved. नाउ जस्ट रिजॉल्व के लिए क्या कंडीशन है, देखो अभी मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, एक्चुअली वो स्ट्रेट नहीं आएगी. ओके बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन इमेजिन दैट इट इज स्ट्रेट. ओके अभी मैं एक लाइन यहाँ से, ये जो ऑरेंज वाला मैक्सिमा है यानी कि फर्स्ट स्टार का मैक्सिमा से लेकर उसका नीचे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. ओके तो ये देखो कहाँ पे आ गई. सो if your first star's central maximum falls exactly on the first minimum of second star. This is second star का ये first minimum है. Okay, this is minimum. I have written M here. So when first star's central maximum falls on the first minimum of the second star and vice versa. And vice versa means what? Second star's central maximum falls on first minimum of first star. Okay, again here there is a minimum here. This is the first minimum of first star. This is what is vice versa. Then this situation is called as a just resolved, or the images are said to be just resolved. Now what is well resolved? In well resolved, the central maximum of the first star is much away from the first minimum of second star. This is first star, this is second star. And vice versa. Vice versa means second star's central maximum is much away from the first minimum of first star. So this is the well resolved condition, or images, diffracted images are said to be well resolved. And what is unresolved? In unresolved situation, see here,
this is first star, this is second star. So principal or central maximum of first star and central maximum of second star are within the range of first minimas of the two stars. Are you getting the difference? Yes, sir. तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है एंड MCQ विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस. तो अनरिजॉल्व्ड कंडीशन में जो सेंट्रल मैक्सिमास होते हैं दोनों स्टार के, दे आर विद इन द रेंज ऑफ फर्स्ट मिनिमास ऑफ दिस इंडिविजुअल स्टार्स लाइक दिस. ओके, ये मिनिमा के पहले ही ये आ गया, ये मिनिमा के पहले ही ये आ गया, तो इतने वो क्लोज होते हैं एंड दैट इज व्हाट इज अनरिजॉल्व्ड. तो अनरिजॉल्व्ड यानी कि हम देख नहीं पाते हैं कि वो एक स्टार है या दो स्टार है. सो दिस इज व्हाट वी सी विद द नेकेड आइज व्हेन वी ऑब्जर्व द स्टार्स. वी डू ऑब्जर्व लाइक दिस. तो हमारी आंखों में उतनी पावर नहीं रहती है, ऑप्टिकल पावर नहीं रहती है, रिजॉल्विंग पावर नहीं रहती है कि हम दो स्टार को अलग से पहचाने. ओके, अगर दो स्टार बहुत क्लोज है तो. But if you use the telescope, then this unresolved condition may lead to just resolved, और telescope अगर sufficiently powerful है तो we will see well resolved images. तो टेलीस्कोप का या फिर माइक्रोस्कोप का यही उपयोग होता है कि वो जो है हमें इमेजेस रिजॉल्व करके देते हैं. तो ये हो गया एक स्टार का एग्जाम्पल. आपको दूसरा कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो. इवन इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोमीटर का डिस्टेंस आप नहीं देख पाते हो, या फिर जो सेल्स होते हैं, आपको बॉडी में सेल्स होते हैं, प्लांट में सेल्स होते हैं छोटे छोटे, ओके, टाइनी माइक्रोमीटर वाले, तो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप देख सकता है. माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो. क्यों देख सकते हो? क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करता है, वो जो नियर बाय पॉइंट्स है ना उसके, वो अलग अलग करता है इस तरह से. ओके, तो ये सारा प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल द मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप or microscope, binoculars. So all these instruments uses this particular principle. Now we will see resolving power of telescope. अभी तक रिजॉल्विंग पावर हमने इन जनरल देखा, अभी देखेंगे सेपरेटली फॉर टेलीस्कोप एंड द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. सो ये इमेज जो है कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, isn't it? रिफ्लेक्शन. ओके, तो ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे दिया गया है. ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये उसकी डायमीटर d है. ध्यान देके देखो अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ का. ओके, यहाँ पे आईपीस वगैरह नहीं दिखाया गया है, यानी कि आपका जो टेलीस्कोप है कुछ इस तरह से रहेगा. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो. और आपके जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से फर्स्ट स्टार एंड सेकंड स्टार, वो बहुत दूरी पर है. तो दूरी पर जब होते हैं, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड स्टार जो है, लेट्स से सेकंड स्टार, सो सेकंड स्टार जो है उस तरफ से जो रेज आएंगे वो पैरेलल रेज आएंगे. जैसे कि सन से हमें पैरेलल रेज आते हैं, उसी तरह से वो रेज पैरेलल आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. तो ये दूसरा स्टार और ये पहला स्टार, दोनों के बीच एंगल थीटा है यहाँ पे. ओके, बोथ स्टार्स आर मेकिंग एंगल थीटा हियर. वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दो, बाद में समझ में नहीं आएगा नहीं तो. तो ये एंगल थीटा है, द एंगल थीटा इज द एंगल मेड बाय द टू स्टार्स विद द आवर इंस्ट्रूमेंट. अभी वो जो दो स्टार है, दोनों स्टार का आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन यानी कि आपकी आंखों की रेटिना, तो वहां पे जो रेटिना के ऊपर आपको दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा. तो पहले स्टार का ये पैटर्न है और दूसरे स्टार का ये पैटर्न है. Now, resolving power of a telescope is defined as the reciprocal of the smallest angle subtended at the objective lens of the telescope by two distant objects for which the telescope produces just resolved images. Okay, definition आपको समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं है. We will understand using the formula here. If
theta is equal to smallest angle subtended at the objective lens for which the two objects are seen to be just resolved. ओके, थीटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. थीटा क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, इससे स्मॉल नहीं हो सकता है थीटा फॉर दैट पर्टिकुलर टेलीस्कोप. उससे अगर स्मॉल थीटा हो गया तो आप इमेजेस क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो. थीटा दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये रेडियन में हो सकता है आपका. If theta is the smallest subtended angle at the objective lens for which the two objects are seen to be just resolved, then resolving power of telescope is given by 1 by theta is equal to capital D by 1.22 lambda. तो ये फॉर्मूला भी कैसे आता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. बट दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा. सो 1 by थीटा, सो दिस इज योर रिजॉल्विंग पावर. थीटा आपकी रिजॉल्विंग पावर नहीं है, इनवर्स ऑफ थीटा आपकी रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप की. रिमेंबर दिस. थीटा जितना बड़ा होगा उतनी आपकी रिजॉल्विंग पावर कम रहेगी, और थीटा जितना छोटा रहेगा उतनी रिजॉल्विंग पावर आपकी ज्यादा रहेगी. यानी कि थीटा दोनों एंगल स्टार के बीच जितना छोटा एंगल ये टेलीस्कोप रिजॉल्व कर सकता है, यानी कि उतनी रिजॉल्विंग पावर उसकी ज्यादा है. सो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड इज इक्वल टू कैपिटल डी. कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्बडा. लैम्बडा यानी कि जो वेवलेंथ आप कंसिडर कर रहे हो वो वेवलेंथ. सो आई रिपीट द डेफिनेशन, देन यू विल अंडरस्टैंड नाउ. Resolving power of a telescope is defined as the reciprocal of the smallest angle subtended at the objective lens of the telescope by two distant objects for which the telescope produces just resolved images. I hope you have understood this. Yes. Have you understood this? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. ओके, सो दिस इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप्स. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको इसको. नाउ अभी हमें देखना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग के लिए रेलेस क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है. ओके, यहाँ पे जो कलर फोटो दिख रहा है वो देखा है आपने पहले इस तरह से. ये सर एक्सपेरिमेंट में देखा था. करेक्ट, वेरी गुड. जो हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था वहां पे उस तरह से ये स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, ठीक है. तो वो अभी जिनको याद है उनको अभी क्लियरली समझ में आ जाएगा. नाउ Rayleigh's criteria for diffraction grating. According to Rayleigh's criteria, 2 point sources और 2 spectral lines. अभी यहाँ पे point sources मत ले लो, 2 spectral lines consider करो. 2 spectral lines of equal intensity are just resolved by an optical instrument if the central maximum of the diffraction pattern due to one falls on the first minimum of the diffraction pattern of another. So see यहाँ पे 3 कंडीशन, अगेन 3 कंडीशन है यहाँ पे. So this नीचे देखो कंडीशन A. So this कंडीशन A फर्स्ट कंडीशन, this is a condition B and this is a condition C. Again 3 कंडीशन. अभी यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है आपको स्पेक्ट्रा का, यहाँ इस स्पेक्ट्रा में you will find that orange and red are clearly separate. Here you will see that blue and green are clearly separate. They are well separated. Okay. अब यहाँ पे येलो जो है, येलो में और वेवलेंथ हो सकते हैं, वेरी क्लोज वेवलेंथ हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम वेपर लैंप अगर आप लेते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो उसमें आपको लाइन तो एक दिखती है लेकिन उसके 2 वेवलेंथ होते हैं. इसको डाइक्रोमेटिक सोर्स भी बोलते हैं सोडियम वेपर लैंप को. एक्चुअली इट इज डाइक्रोमेटिक बट प्रैक्टिकली हम उसको मोनोक्रोमेटिक कंसिडर करते हैं. तो अगर आपके डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में सफिशिएंट पावर है तो वो जो सोडियम वेपर लैंप है उसके 2 वेवलेंथ का 2 लाइंस आपको अलग दिख सकता है.
लेकिन उसमें उतनी पावर होनी चाहिए। ओके, सो पहली कंडीशन ये, दूसरी और तीसरी। पहले हम देखेंगे वो मिडिल वाली कंडीशन, वो समझना थोड़ा सा अच्छा होता है। नहीं, पहले ये लेंगे वेल रिजॉल्व। सी, सो वेल रिजॉल्व में क्या है कि अब यहाँ पे ये अलग अलग कलर्स है, अलग अलग वेवलेंथ रहेंगे उसके। ऑरेंज की वेवलेंथ अलग रहेगी, रेड की वेवलेंथ अलग रहेगी, येलो की वेवलेंथ अलग रहेगी, ब्लू की वेवलेंथ अलग रहेगी। ठीक है, सो ये सारे कलर की वेवलेंथ अलग अलग रहेगी। तो सपोज दो नियर बाय वेवलेंथ्स, आप जो स्पेक्ट्रा है वो क्लियरली देख सकते हो या नहीं, वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए आपको ये इंटेंसिटी पैटर्न ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इफ द central maximum of first wavelength is much away, I will draw this. Central maximum of first wavelength is much away from the first minimum, or let's say other wavelengths central maximum. तो इससे या फिर इससे ये बहुत दूरी पर है, so then this is called as a well resolved images. If central maximum of first wavelength falls exactly on the first minimum of the second wavelength here, and vice versa, then such images are called as a just resolved images. And third, if the central maximum of first falls very close to the central maximum of the second wavelength, and it is well before the first minimum of second wavelength, then this condition is called as a not resolved condition. So in this particular condition, you will see the two wavelengths very close, so that you cannot identify that there are two different wavelengths. So this is the Rayleigh's criteria of resolution for diffraction grating. The resolving power of grating is defined as its ability to show the two neighboring spectral lines in a spectrum as separate. It is given by ratio of the wavelength of any spectral line to the smallest wavelength difference between neighboring lines, for which the spectral lines can be just resolved at the wavelength lambda. Definition समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, अच्छी तरह से याद रखना है इसको। ओके, so resolving power of a diffraction grating is equal to lambda by d lambda and is equal to m into n. लैम्बडा मींस जो वेवलेंथ आप कंसीडर कर रहे हो उसमें से कौन से भी वेवलेंथ, फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि एक दो पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, अभी दो वेवलेंथ जो है वो एक ही पॉइंट से आ रहे हैं, एक ही सोर्स से आ रहे हैं, बट आपकी आंखें उसको सेपरेट नहीं कर सकती है, लेकिन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कर सकती है, सेपरेट कर सकती है उसको। ओके, तो जो वेवलेंथ आ रहे हैं उसमें से कौन से भी वेवलेंथ आप यहाँ पे ऊपर ले सकते हो, लैम्बडा 1 या फिर लैम्बडा 2, डिवाइडेड बाय वो जो दो वेवलेंथ है जिनके बीच आपको डिफरेंस चाहिए, सेपरेशन चाहिए, वो जो दो वेवलेंथ है उनके बीच का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो एंगस्ट्रॉम में आता है। ओके, ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा आपको, इज इक्वल टू एम, एम यानी कि ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। अभी आपको पता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप लेते हो तो वहां पे 0, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑर्डर स्मॉल एम इनटू कैपिटल एन। Capital N is the number of slits on the grating which are illuminated. Capital N is the number of slits which are getting illuminated. Okay. So this is lambda by d lambda is equal to m into n. So this is what is the resolving power of a grating. This is the end of this diffraction.
First write down the problem and then solve it. वहां पे एक हिंट भी आपको दे दी है. Till then I will check the attendance of student. Anybody got the answer? Yes, sir. How much? 23 degree 34 minutes. Sorry, 35 minutes. Correct. So see the solution is in front of you. जिनको आया नहीं है उनके लिए see अभी टाइम कम है. ओके इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. 1 मिनट रह गया है अभी. सो डायरेक्टली आई एम शोइंग यू हियर. सो क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम इन फ्रॉनोफर पैटर्न ऑफ स्लीट 10⁻⁶ मीटर वाइड इफ इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम. तो ये स्लीट है. स्लीट की विड्थ है 10⁻⁶ मीटर एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम. सो फर्स्ट मिनिमम इज दिस और एंगुलर पोजीशन यानी कि थीटा हमें फाइंड आउट करना है. ओके बिटवीन सेंटर एंड दिस पर्टिकुलर मिनिमम. ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास है ए स्लीट विड्थ दी है, वेवलेंथ दी है एंड फर्स्ट मिनिमम है इसलिए n इज इक्वल टू हमारा रहेगा 1. थीटा हमें फाइंड आउट करना है. सो फ्रॉनोफर डिफ्रैक्शन मिनिमा कंडीशन जो है मैंने बताया था आपको, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको अच्छी तरह से बाय हार्ट करनी है. दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन इन डिफ्रैक्शन. सो a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा एंड देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा बाय a. n की वैल्यू है 1. लैम्बडा इज 4 × 10⁻⁷ मीटर divided by a is 10⁻⁶ meters. So that will come 0.4. Theta is equal to sin inverse of 0.4 and that will come 23.6 degree or 23 degree 35 minutes. Everybody understood? You can Yes, take the sir. screenshot. You can take the screenshot of this. Yes. And one problem for your homework. If you have taken screenshot, all of you just write down this. राइट डाउन दिस. 1 मिनट में लिख सकते हो उसको फॉर होमवर्क एंड कल मैं इसका आंसर पूछूंगा सबको. थोड़ी हिंट मैं यहाँ पे देता हूँ. Have you written this? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो हिंट मैं ये देता हूँ आपको कि आपके पास फार्मूला तो नहीं है लेकिन ये फार्मूला आप बना सकते हो इस तरह से. हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन गेटिंग की कंडीशन है a + b sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्बडा. सो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू a + b sin थीटा बाय m. अभी ये लैम्बडा का फॉर्मूला है, हमें चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. ओके यानी कि लैम्बडा मैक्स चाहिए. सो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू a + b जो कि कांस्टेंट रहेगा हमेशा. m वो भी कांस्टेंट रहेगा लेकिन sin थीटा की वैल्यू वेरिएबल होती है. सो विल टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लैम्बडा मैक्स मिल जाएगा. एंड व्हाट इज द sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू? 1. 1. Remember that maximum value of sin theta is always 1.
ओके, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, रिमेंबर दिस। सो साइन थीटा मैक्स इज 1। सो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, हेंस यू विल गेट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे a प्लस बी नहीं दिया है, बट यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर दिया है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 1/5000। अभी इतना सब कुछ दिया है मैंने आपको। ऑल राइट, सो सॉल्व दिस एट होम एंड यू टेल मी द आंसर टुमारो।